Yes. Okay. So you've created a property object, and in this property object, you basically created gross super area. You've created basic sale price, property type. You created record type field. Okay. Copy tower. Great. Okay. It's great that you've created such fields already. Um, so let's get into a discussion first, and then I'll let you know about each and every one of these. Okay. Currently, I have mentioned property name as a text. In the screenshot, is number. It is mentioned as auto number. Auto number. So Yeah. I am, yeah. So I am not able to go that from which number I have to start, so that I have leave it to text. You can change it now. Okay. Yeah. We'll do it. Don't worry. So click on if you, on the extreme right of this particular field, property Yes. name extreme right. Yeah, extreme right. This one. Yeah. Click on that. Yes, edit. Here you to select auto number. Yeah. Then All I right. am Now here. auto. Here confusing. Here. I'll let you know. Do not get confused. So what happens here is that with every single object and we while we were creating objects at that point in time, I told you this particular point that when we are creating objects, okay, so what happens is we get two options to basically you know keep the name of or the reference name of or the reference number of every single record that will get created in the object. Okay, so uh, in a way what happens here is that let's say if there is, and we took the example of project, that day we created the project object, right? And project Yes. is like a is like a top of the tree object kind of, right? Because within one single project there will be lots and lots of other stuff, right? There will be lots of towers, there will be n number of properties and all that stuff, right? So Yes. that so for that we basically could have just created, this thing, this particular. Just give me 1 minute, huh? Just 1 minute. Okay. I'm sorry about that. Okay, so what happens is that because project is like a top of the tree object, you can create a text reference name for that, right? And what will happen is that you can basically insert or input the value of the text, and that should suffice. Okay, but what for objects whose records are going to be plenty? Okay, so property name, there will be n number of properties which will be present in one single project, right? Now within one single project there will be n number of towers, there can be n number of towers, there can be n number of properties. Therefore, for such objects it is really necessary that we create the reference numbers in a particular order. Okay. Okay, so what's happening here is that because there are n number of properties, and I took the example of billing that day, if you remember, billing, invoicing. So every single Yes. time a new invoice gets generated, and every single time you go to shopping at any place, or you go to McDonald's, Burger King, or whatever, and you see there's a reference number, there's a billing reference number on every single one of those invoices. And when you have a look at it, the invoice number that you've got at that point in time and the next one, they're both different, but they're in order, right? So Yes.
Yes. If if one is, let's say, if one is 3067, the other one, the next one is going to be 3068, and so on and so forth, right? So this is in an order, and why exactly does this happen, and why exactly does this helps is that when these are in order, it is easier to track. For tracking purposes, it is easier. Okay, and that's the reason why you have an auto number data type here. Okay, now for auto number, how exactly we do with auto number? With auto number, we basically there's an example that's given, a dash, and then all that stuff. So for property, what we can do is, let's type in prop. So keep the rop as small case, and then give a hyphen, dash, yeah. Open the curly bracket. Yeah. Okay, now let's just put in 0, 0. This is, am I not audible? Hello? Sometimes your voices break. So you need to tell me that, right? Okay. Now close the curly brackets. Okay. Yeah, your voice is not audible now. Is it better now? Yeah, it is okay. Yeah. Okay. The starting number, just enter 0, 0. And I said on the above the display format, you can keep just two zeros. Okay. Yeah, that's So fine. here Okay. also we have, here also we have to mention 00, huh? Yeah, starting number can be 0, 0. You can even keep it as 0, 1. That's absolutely fine. You can keep it as 0, 1. Okay. Okay. And then click on save. Okay. Got Okay. So it. this is Yeah. done. Now show me the other objects that you've created. Have you created the object tabs as well? No, sir. You haven't. Okay. Yeah. What are the other objects that you've Already. created? Have you created tower? Yeah, I said so. Okay, great. Perfect. Okay. All right. So yesterday we were just now let's get to some some real business now. So yesterday we discussed about a little bit about related lists. You remember? Related list. We saw related list, right? Yes. In the page layout. Okay. Now, and at that point in time, I also mentioned that related lists are basically available there because in Salesforce, the objects share a relationship with each other, right? So every single object is related to the other object, correct? That's what I Yes. said yesterday. Okay. So there are a few object relationships which are in place. Okay. And and what happens is, because of these relationships, the tables can actually be interrelated, or the data can be interrelated. Okay. Now, the most important relationships which are in place are master detail, lookup relationship, and junction object. Okay. These are the types of relationships which are there in Salesforce. There's also hierarchical relationship, which is there, and there.
So basically, these are the types of relationships which exist. Now, the master detail relationship. Let's discuss about that first, and then we'll move on. So, master detail. What exactly is master detail? Firstly, um, let's say there is one object which is like, a parent object. Okay. So what's happening here is that uh, we created the project object, right? Okay. Right. Now the project object is like the parent of let's say, let's take an example of the tower object. Okay. Okay. Now Okay. what's happening here is that project is like uh, a parent. So within one single parent there can be many child. Yes. Okay. So once you create one project record, which you've already created yesterday or day before, you created Godrej properties, right? Now Right. Godrej properties can have, let's say, 10 towers. Okay. 10 towers. Okay. Now Godrej properties has 10 towers, and all of these 10 towers are basically the child, or are on the child side of the master object or the parent object, which is project. Okay. So one project contains 10 child. Now this is like a relationship that you have in Salesforce, wherein the master object, which is the project, controls controls the behavior of these children object records, or these children objects. Okay. So if basically what happens here is that if you delete the project, if you delete the project record, which is Godrej properties, all the child record get deleted automatically. Okay. So you understand what I'm saying here? Yeah. Got it, sir. As soon as you basically create a project, and within that project you create 10 towers. Now as soon as you delete the project, the 10 tower object records get deleted automatically. And this happens because project and tower share a master detail relationship with each other. Any questions, anyone? I know there are a few people who've just joined. यस सर, जो थोड़ा सा आपने बताया होगा सर, थोड़ा सा डिटेल मतलब थोड़ा सा बता दीजिएगा कि एंड में क्या बताया था उससे पहले. So Vishal has just joined, Robin just joined, Sai I think joined a little while ago. Vinny, who's Vinny? Actually, it's me. So Sorry, it's what? this is itself. The Vinny is like my sister's name, so there's a kind of a confusion. Okay, anyways. So see, I can only request you guys to join in before 8, or at least at 8, so that we can firstly start on time. We have to every single day wait for like 5 minutes and then we begin. That's one. Secondly, if you are going to join, like, in between, you would not understand the core concepts. These are like we're building the core concepts at the moment right now. Okay. So, and every single class is really important. There are only 30 classes, right? You should understand that every single day. Please join in. Please make sure that you leave everything behind and you just join in at 8. Okay. Because now I have already explained one relationship. You probably would have understood this, but half understanding is always incorrect, right? Okay. All right. No problem. Okay. So the first relationship is the master detail relationship, wherein we are basically joining two objects together or two tables together, wherein
if one particular object record, which is the parent record, if that is deleted, all the child record gets deleted. And this type of deletion is called as cascade delete. Cascade delete. Okay. This cascade delete term might actually be asked in the interviews as well as certification questions. So you can basically write this down somewhere in your notepad. Okay. Now, next thing. So this is a master detail relationship. Basically project is on the master side and tower is on the child side of it or the detail side of it. Okay. Now, next thing here. Now, the next thing here. The second relationship that we have in Salesforce is the lookup relationship. Okay. Lookup relationship. Okay. Now, what happens is with the lookup relationship is that there are two objects that are present. Okay. And here, basically you're looking up to the other object. Now, when I'm saying looking up to the other object, what I'm saying precisely here is that, let's say there are two objects, tower and property. ठीक है, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे मास्टर डिटेल के केस में क्या था, प्रोजेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट के बहुत सारे चाइल्ड टावर्स हैं, टावर रिकॉर्ड्स हैं बेसिकली, ठीक है, यानी कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में 10 टावर हैं, टावर 1 से लेके टावर 10 तक, ठीक है, ये हो गया मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। अब मैं बात कर रहा हूँ लुकअप की, तो लुकअप में क्या है, मान लो कि टावर और प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, both of these objects share a lookup relationship between each other। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप एक प्रॉपर्टी है आपके पास में, एक प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड किस टावर में है, ओके, वो प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड किस टावर में है, इसके लिए एक लुकअप आप फील्ड बना सकते हो, एक लुकअप रिलेशनशिप बना सकते हो। Your voice is not audible. Yes, it is not audible because I just muted it. Can you hear me now? Yes, yes. Okay. So the point is that आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किस टावर में है, इसके लिए आपके पास में एक फील्ड होनी चाहिए which will let you know the same thing, right? So one field should actually have a tracking of in which particular tower your property has, okay? और इस ट्रैकिंग के लिए लुकअप रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है, ये एक एग्जांपल है जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। लुकअप रिलेशनशिप बेसिकली होता है एक रेफरेंस के लिए, ये हो गया आपका कोर कॉन्सेप्ट। और जो एग्जांपल है वो ये है कि आपकी प्रॉपर्टी किस टावर में है, इसके लिए आप एक लुकअप रिलेशनशिप फील्ड बनाओगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए there are 10 towers which you already know, right? अब within these 10 towers there will be properties which will be present, right? Yes. हर टावर में कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। अब जब मैं प्रॉपर्टी वाले रिकॉर्ड पे जाऊंगा तो प्रॉपर्टी वाले रिकॉर्ड पे रेफरेंस भी तो होना चाहिए ना। तो मैं आपको ना ये अपनी स्क्रीन पे शेयर करके दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। Okay. देखो, so I open, everyone can see my screen, right? Yes. So I open the app here. Okay. Now they're basically records present here. So these are project records. Okay. These are all the project records. I think there are only 2 projects that I've created. Yeah. These are project records. Okay. So when I open Godrej properties, I have these options available. When I go to related lists, I have these related lists available. Okay. So I have 0 towers here. I have 1 property here. Okay. Now, effectively with मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, अभी जब हम मास्टर डिटेल की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, पहले ये समझाता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स ओपन, ओके, नाउ I have a property type here. You can see this property type object, okay?
अभी इस प्रॉपर्टी टाइप ऑब्जेक्ट में ना, ये प्रॉपर्टी टाइप ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी जो है वो दोनों एक साथ में, property type and property are sharing a master detail relationship with each other. ठीक है, अभी फर्स्टली इसका क्या मतलब हुआ ये समझा देते हैं। मास्टर डिटेल का मतलब ये हुआ कि आप एक प्रॉपर्टी टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे, सॉरी एक रिकॉर्ड बना रहे, ये प्रॉपर्टी टाइप का रिकॉर्ड है, और इस प्रॉपर्टी टाइप के रिकॉर्ड में आप रिलेटेड में देख रहे हो तो आपके पास में ये सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ठीक है, Okay. एक सेकंड देना है, क्या कहते हैं, मैं आपको कैस्केड डिलीट भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो वो एक थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी हो जाएगी and then we can I'm sorry, and then we can move on from there. Okay, so one property type record, this is 12, this one has 1, great, and this one has 3. Okay, we'll take the example of 3. Okay, let's close the other 2. Okay, so you guys can see that this property type, this is the master object, and the child object is child object of property type is the properties object. ठीक है, और ये कैसे दिखाना है ये भी मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। So we go to setup, we open object manager, and in object manager we go to property. अब ये बताओ कि अभी आपके जो पापा हैं, किसी के भी पापा हैं बेसिकली, तो आपके पापा या आपके जो फादर हैं वो अपने बेटे का नाम साथ में नहीं लगाते, लेकिन आप जो है मतलब जो बेटा है वो अपने पापा का नाम साथ में लगाता है, राइट? Right. तो ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो भी प्रॉपर्टी टाइप का रिकॉर्ड में देख रहा हूँ ना, या प्रॉपर्टी टाइप का जो रिकॉर्ड देख रहा हूँ, इसके डिटेल में प्रॉपर्टी का कहीं भी कोई रेफरेंस नहीं आ रहा, क्योंकि प्रॉपर्टी टाइप क्या है, पेरेंट है। क्या है? पेरेंट है। लेकिन जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है मेरा प्रॉपर्टी, उसके ऊपर जाके मैं क्या बनाऊंगा, एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाऊंगा। ये देख रहे हो आप, प्रॉपर्टी टाइप के साथ में मैंने क्या बनाया है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाया है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब भी मैं एक प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड बना रहा हूँगा, सो लेट्स क्रिएट अ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड हियर, यहाँ बनाते हैं हम। So whenever I'm making a new property record here, I click on new and I create a new property record. ठीक है, अभी इसमें मेरे को टावर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, और ये जो प्रॉपर्टी टाइप है इसके आगे स्टार आ रहा है रेड कलर का। जब मैं इस पे माउस होवर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा। क्यों रिक्वायर्ड है ये पहले ये आप लोग आंसर करोगे, बोलो जल्दी से। Because every child should have one parent. पेरेंट, यस, परफेक्ट, यस। बिकॉज जब भी हम एक चाइल्ड का रिकॉर्ड बनाएंगे तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम उसको रेफर करें पेरेंट से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा और इसके साथ में ये वाला बना देता हूँ, PT0002। ठीक है, टावर मेरे ऊपर है, लुकअप रिलेशनशिप मेरे ऊपर है, मैं उसको टैग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। सो अ लुकअप रिलेशनशिप may or may not be tagged with the object record, but master detail should be tagged, should always be tagged. It is mandatory to tag it. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस, इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मास्टर डिटेल एंड अ लुकअप रिलेशनशिप। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ पे टैग कर दूं चाहूँ तो, चाहूँ इसे हटा दूं। ठीक है, सेकेंडली फ्लोर के साथ में भी ना ये लुकअप रिलेशनशिप है। if I want I can basically tag this, if I do not want I can basically remove it. okay, अब मैंने इसमें इस तरीके से बनाया कि मैंने प्रोजेक्ट को बेसिकली एक लुकअप बनाया है और मास्टर डिटेल बनाने के बजाय। ठीक है, तो प्रोजेक्ट भी मैं टैग नहीं कर रहा, यहाँ पे सिर्फ मैं बेसिक सेल प्राइस डाल देता हूँ, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और सुपर एरिया डाल देता हूँ। ठीक है, and then I can save this record. Okay, so a new property record is got created. Okay, and this is got created within this PT0002. I'll come here. So अभी यहाँ पे 3 दिखा रहा है count. I'll refresh this.
एक मिनट देना, मैं चार्जर कनेक्ट कर लूं। Okay, so my question here is firstly, anyone who's here and do not want me to speak in Hindi or is not able to understand in Hindi can raise their hands or can say this. So I'll continue in English. If you're fine with my Hindi, then it's great. तो ये कंटिन्यू इन हिंदी, यस। खामोशी मुझे बता रही है कि सारे चाह रहे हिंदी में ही। ठीक है, ये रिकॉर्ड बन गया प्रॉपर्टी टाइप का। और अब मैं यहाँ रिलेटेड पे जाऊंगा ना, तो मैं जैसे रिलेटेड पे जाऊंगा आप देखोगे कि ये 4 प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, अभी ये 4 प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी ये P008 ये यहाँ पे 18 ये खुली हुई है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज ओपन हियर। तो व्हाट वील डू इज लेट्स डिलीट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, सॉरी प्रॉपर्टी टाइप। ठीक है, तो क्या था कि एज सून एज द पेरेंट रिकॉर्ड गेट्स डिलीटेड द चाइल्ड रिकॉर्ड गेट डिलीटेड ऑटोमेटिकली। As soon as the master record gets deleted, the every single one of the child records get deleted automatically. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना और भी खोल के दिखा देता हूँ। ये भी ओपन कर लेते हैं, ये भी ओपन कर लेते हैं, ये भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये तीनों चारों आपके रिकॉर्ड्स ओपन हो गए। ये है 18, ठीक है, ये 18, ये 5, 12 and 16. Okay, and this is the property type record. So we basically delete this record here and then we go to delete, and it is going to ask us delete property type. Are you sure you want to delete? Yes, we want to delete. ठीक है, ये गया यहाँ से। ठीक है, so as soon as this is gone, you come here and you refresh this. क्या लिखा है? Yes, it was a problem, yeah. We ठीक could है, split automatically, yes, but didn't ठीक है, get it. refresh again, it's gone. Okay, refresh again and it is gone. It is something like work as a foreign key. You can say that, but not exactly. Here, this is like more of an object thing. Foreign key में मत जाओ अभी, प्राइमरी की फॉरेन की में मत जाओ अभी। अभी ऑब्जेक्ट पे रहो, टेबल पे रहो, अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल रखो अभी। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल रखोगे तो उस सिंपल अंडरस्टैंडिंग का मतलब बेसिकली ये हुआ। और एकदम बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग पे अगर चला जाऊंगा तो उसका मतलब ये हुआ कि एक जो टी सेलर था, वो टी सेलर बेसिकली क्या कर रहा था ना, एक मास्टर डिटेल बना के चल रहा था। वो मास्टर डिटेल अपने ही एक नोटपैड के पेज में बना के चल रहा था। तो वो क्या कर रहा था ना, एक पेज के ऊपर एक टेबल उसने बना रखी थी जिसमें उसने बेसिकली मास्टर रिकॉर्ड्स रखे थे, और दूसरी जो उसकी उसी नोटपैड में दूसरे पेज पे उसने चाइल्ड रिकॉर्ड्स रखे थे। तो उसने क्या करा, बेसिकली पूरी नोटपैड ही हटा दी, मतलब वो मास्टर वाला हटा दिया एक तरीके से। तो वो पूरी दोनों पेजेस हट गए। तो इट्स लेट्स कीप इट वेरी सिंपल डाउन टू द बेसिक्स कि भाई जैसे ही मैंने मास्टर रिकॉर्ड्स डिलीट करे या मास्टर रिकॉर्ड डिलीट किया, चाइल्ड रिकॉर्ड मेरा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। लेट्स कीप इट टू दैट बेसिक। इसमें प्लीज अभी फिलहाल के लिए कुछ भी वो मत करो, फॉरेन की प्राइमरी की ऑल दैट स्टफ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? ठीक है, ये रिसाइकल बिन होता है। यहाँ पे 9 डॉट्स पे मैं गया, यहाँ पे रिसाइकल बिन पे जाऊंगा और यहाँ से रिसाइकल बिन से हम 15 डेज तक ये सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये रिस्टोर हो गया मेरा रिकॉर्ड। यहाँ पे रिफ्रेश, ठीक है, ये मेरा रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, अभी मेरे को एक
एक बात बताओ, जब मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनाई थी, ये आ गया मेरा रिकॉर्ड वापस। अब एक बात बताओ, जब मैंने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बना रहा हूँ मैं, योर so when I'm creating this property, along with the fact that I'm selecting these fields, I am also selecting the lookup fields, right? So I'm selecting this tower here. So tower 1 में इसको कर देते हैं, इस प्रॉपर्टी टाइप में इसको कर देते हैं, ठीक है। रेरा सर्टिफिकेट रिसीव फॉल्स ही रखते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू डाल देते हैं और यहाँ पे एक वैल्यू डाल देते हैं, एंड देन वी सेव। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं रेफरेंस पॉइंट्स दे रहा हूँ टावर के या लुकअप रिलेशनशिप के, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, can you guys understand the difference between a lookup relationship and a master detail? Do you guys understand the basic logic? And do you guys understand, like, if someone asks you, can you tell me? मास्टर का समझ में आ गया सर, एक बार लुकअप का रिपीट कर दीजिए सर, मास्टर का तो एकदम क्लियर है। अरे सबको समझना पड़ेगा विशाल, रुको तो सही। So every single person here, do you understand कि exactly क्या डिफरेंस है दोनों में? Everyone, please answer करो not आप able लोग। to understand. Not able to understand what? If we tag this tower T000001, no, can we able to delete this PT 0002 No. child class? No, No. no, no. I'll come there. Don't worry. So what happens is, मैं बताता हूँ आपको बेसिकली क्या है। अब लुकअप रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। So what exactly is lookup relationship? Lookup relationship is a simple lookup, ठीक है। So lookup relationship is a simple lookup relationship or simple lookup between two objects, ठीक है। So what happened here is that when we created this property object, we tagged the tower object, ठीक है। अभी the cascade delete functionality only works with master detail relationship, parent child relationship, ठीक है। It does not work with this one lookup, okay। So यहाँ पे what is happening is you have one tower and that one tower can be with multiple multiple properties, okay। But because tower and property share a lookup relationship with each other, what happens here is that even if you delete the tower, the properties do not get deleted. So this is like referencing something. अभी जब हम रिकॉर्ड बनाते हैं ना, इसका एग्जांपल देता हूँ। जब हम रिकॉर्ड बनाते हैं ना, जब हम अपना लेट्स से हम अपना कहीं पे कुछ दे, मतलब बेसिकली वी आर like giving our reference or we're giving let's say हम अपना we are referring our name and everything, okay, and वहां पर we can't change our parents name, right? But there's, let's say we are right now, there probably might be somebody in Delhi, someone in Hyderabad, someone in Bangalore, okay, and someone stays in Bangalore right now. तो अभी के लिए वो अपना जो सिटी है वहां पे बैंगलोर इनपुट करेंगे, ठीक है। बाद में they move from Bangalore to let's say Hyderabad, so they will then change that Bangalore to Hyderabad, ठीक है। Similarly here, मान लीजिए जब इनिशियली जब हम ये प्रोजेक्ट बना रहे थे, प्रोजेक्ट बनाते टाइम यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज बनाई और प्रॉपर्टीज बनाते टाइम हमने इसको टावर 0001 में डाला। आफ्टर व्हाइल वी अंडरस्टैंड एंड वी रियलाइज कि this property is not in tower 1, it's in some other tower. So what we can do is we can edit this, we can remove this, and we can basically put it in tower 2, ठीक है। You can edit a lookup relationship field and change the references. You cannot do the same for a property type because property type is sharing a master detail relationship with the property object, but tower is sharing a lookup. So in a lookup relationship, you can basically refer and refer again. You can basically tag and tag again, okay। Lookup is a simple lookup relationship. It's a simple lookup, that's it. And master detail is a parent child, okay। These are like one to many relationships, ठीक है। one to many and many to many relationships होते हैं ये। इनमें क्या होता है कि कभी भी हम
एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रेफर कर रहे हैं या एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो इस केस में बेसिकली हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम लुकअप रिलेशनशिप के केस में जब भी हम टैग कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि लुकअप रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि आपको हर ऑब्जेक्ट के साथ रेफर करना है, हर ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड के साथ, लेकिन मास्टर डिटेल आपको करना ही है, उसके बिना रिकॉर्ड ही नहीं बनेगा। Okay. मास्टर डिटेल में डिटेल साइट का रिकॉर्ड ही नहीं बनेगा अगर आप मास्टर के साथ उसे रेफर नहीं कर रहे हो तो। बट विद अ लुकअप यू कैन और कैन नॉट रेफर, दैट इज यू मे और मे नॉट रेफर विद द पेरेंट। यहाँ पे बेसिकली क्या है, पेरेंट चाइल्ड बोला जाता है जैसे टावर के, और पेरेंट चाइल्ड क्यों बोला जाता है उसका बहुत सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है, मतलब बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। फॉर अ लुकअप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो एक टावर है, एक टावर के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, राइट? बिकॉज एक टावर के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, दैट इज वाई टावर को हम एक तरीके से चाइल्ड बोल, सॉरी पेरेंट बोल सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम टावर को पेरेंट बोल रहे हैं और प्रॉपर्टीज को अगर हम चाइल्ड बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं हर एक टावर के सॉरी हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर एक टावर रेफर कर सकता हूँ अभी, बिकॉज यहाँ पर कैस्केड डिलीट नहीं चलता है। तो अगर मैं टावर का रिकॉर्ड डिलीट भी कर देता हूँ ना, ये करके दिखाऊं या समझ गए? तो अगर मैं यहाँ से टावर का रिकॉर्ड डिलीट भी कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है, तो जैसे ही मैं टावर का रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ ना, यहाँ पे जो मेरा प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है, यहाँ से ये टावर उड़ जाएगा। टावर इज गॉन फ्रॉम हियर, व्हाई? टावर इज गॉन फ्रॉम हियर, व्हाई? Yeah. So we have set the reference and the reference is not available. That's why we remove Correct, the because the reference. reference itself is deleted now. Yes, correct. ठीक है? Now, Shilpa, you had the question and Vishal, you had the question. Please tell me, is the question answered here? यस सर। विशाल आपने ही पूछा था ना? हाँ सर, क्लियर। चलो बढ़िया, आवाज पहचानने लगा मतलब मैं। And Shilpa? No, I'm not asking. So who asked? Sai or someone else? I asked it. So what's your name? I'm sorry. Prasanna, Sai. Sai, okay. Okay, Sai, is it understood now? Yes, got it. Okay, great. Perfect. ठीक है, तो basically these are the two types of relationships which are in place and which are majorly used. ठीक है, you have a master detail and a lookup. ठीक है, अभी ये बनते कैसे हैं पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से नीतीश ने सारा सब कुछ बना लिया है ना नीतीश? किसने नहीं बनाया है? शिल्प, विशाल, हैव यू और शिल्पा और एनीवन एल्स जिसने सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के रखे हैं अभी फिलहाल के लिए और रिलेशनशिप्स नहीं बनाए हैं? कुछ फील्ड्स बना दी सर, रिलेशनशिप भी बना दी, पर इतना डिटेल में जितने सारे इन्होंने बना रखे हैं ना उतना सारा नहीं बनाया। क्या बनाया दिखाओ। सर अभी तो मैं बता सकता हूँ, एक मिनट। इनिशियली जो क्लासेस हैं उसमें 1 घंटे की क्लास थोड़ा कम टाइम है मेरे हिसाब से, डोंट यू थिंक सो? क्योंकि क्या होता है ना, स्टार्टिंग के 45-50 मिनट्स तो ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ही चले जाते हैं, नहीं? Yes, sir. और फिर वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बाद में जब हम एक्चुअली एग्जीक्यूशन पे आते हैं ना, तब तक क्लास खत्म हो जाती है। इट्स अ प्रॉब्लम एक्चुअली। चलो एनीवेज, अभी तो सर ऑब्जेक्ट बनाया मैंने और उसमें दिखाओ अभी आज दिखाओ। जैसे डिटेल्स वगैरह डालता हूँ।
शेयर द स्क्रीन। नहीं अच्छा है, अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बनाए तो वो भी चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट बताने के लिए तो होना चाहिए। नितिश ने तो बना दिया, बढ़िया करा नितिश ने सब कुछ। बट क्या है कि अब फॉर अदर्स प्रॉब्ली माइट नॉट हैव क्रिएटेड दिस। रॉबिन आपने बनाया है? हेलो क्या? अच्छा, रॉबिन इज कनेक्टेड विद द अदर एज वो। यस। अच्छा तो रॉबिन ओके। Now technically we had only 3-4 people joining in, huh? 5 people. 5 people. Yes, ये बनाए हैं ऐप के अंदर, प्रोजेक्ट डिटेल्स बनाए थे, इसमें ऑब्जेक्ट डाले हैं। आज इसको सर आगे रिकॉर्ड क्रिएट है करूंगा। ये तो, ये रिकॉर्ड है भाई। अच्छा आपने तो बेसिकली आपने वो नहीं बनाए, ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए बाकी के। हाँ अभी सर वो बनाए नहीं है, आज बनाऊंगा मैं, ऑब्जेक्ट्स बना के इसको पूरा करूंगा सर। अरे यार, अच्छा ठीक है भाई, तो इसे बंद कर दो। नितिश शेयर करो स्क्रीन। तो नितिश हम एक काम करते हैं, आप एक काम करो, आप ना प्रॉपर्टी वाला ऑब्जेक्ट खोलो सबसे पहले। ठीक है, ओपन दिस। अभी एक बात बताओ, फील्ड रिलेशनशिप पे चलो। ठीक है, प्रोजेक्ट वाली फील्ड नहीं बनाई ना आपने? प्रोजेक्ट, बहुत बढ़िया करा। यस, ठीक है, ये तो चलो सबमिशन चलो, so click on new. What we'll do is we'll create a master detail relationship with the project object. तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप बना रहे हैं। और रिलेशनशिप कैसे बनता है? रिलेशनशिप फील्ड से बनता है। तो बेसिकली एसेंशियली हमें बनाना फील्ड ही है। ठीक है, अब हम एक फील्ड से बनाएंगे और फील्ड से हम रेफर करेंगे जो मास्टर ऑब्जेक्ट है उसको। अब एसेंशियली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एसेंशियली हम प्रॉपर्टी वाला ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, चाइल्ड, चाइल्ड पे हाँ जी। मास्टर का फील्ड बना रहे हैं। इज दिस अंडरस्टैंडिंग क्लियर टू एवरी सिंगल पर्सन? तो आगे बढ़ेंगे। ओके सो क्लियर है। ठीक है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप पे सिलेक्ट करो नितिश और आगे बढ़ो एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, रिलेटेड टू, तो अब ये किससे रिलेटेड होगा? तो ये प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड होगा? प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट से। सिलेक्ट कर दो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, फील्ड लेवल में प्रोजेक्ट आ जाएगा, बहुत सही है, बिल्कुल ठीक है। चाइल्ड रिलेशनशिप नेम में आ जाएगा प्रॉपर्टी, विच इज करेक्ट एज वेल, वेरी नाइस। वी गो बिलो शेयरिंग सेटिंग में हम देख रहे हैं, ये शेयरिंग सेटिंग अभी बहुत ही रीसेंट चेंज है जो कि आता है यहाँ पे। पहले पीछे जो एडिशंस होते थे सेल्सफोर्स के उनमें नहीं था ये। तो इसमें दो ऑप्शंस है, रीड ओनली या रीड राइट। तो अलाउ यूजर्स विद एटलीस्ट रीड एक्सेस टू द मास्टर रिकॉर्ड और अलाउ यूजर्स विद रीड राइट एक्सेस। तो बेसिकली एक्सेस का है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अलाउ रीपेरेंटिंग, चाइल्ड रिकॉर्ड कैन बी रीपेरेंटेड, ये भी अभी बहुत नया आया है। ठीक है, पर खैर इसे छोड़ते हैं अभी फिलहाल के लिए। एंड ऑटो ऐड टू कस्टम रिपोर्टर, हाँ कस्टम रिपोर्ट टाइप में हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए, विच इज फाइन। नीचे लुकअप फिल्टर आ रहे हैं, लुकअप फिल्टर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। फील्ड लेवल सिक्योरिटी फॉर प्रोफाइल बाद में बात करेंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड पेज लेआउट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली वी कैन एंश्योर व्हेनेवर वी क्रिएटिंग अ न्यू फील्ड और अ न्यू रिलेशनशिप, वी कैन एंश्योर कि वो किस किस पेज लेआउट पे रहेगा। कल हमने पेज लेआउट के बारे में बात करी थी, करेक्ट? अभी यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हमें उस फील्ड को किस किस पेज लेआउट पे रखना है। यहाँ बिकॉज वी हैव ओनली वन पेज लेआउट, तो वो उस पर तो बाय डिफॉल्ट आई है। ठीक है, ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन सेव। तो रिलेटेड लिस्ट हमने बात करी थी कल, तो रिलेटेड लिस्ट में आ जाएगा वहां पे।
ठीक है, ऑटोमेटिकली क्लिक ऑन सेव। इस तरीके से हम एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरी सिंगल पर्सन हियर इन द रूम? Yes. ग्रेट। Yes, sir. ये वैसे ही हो गया फील्ड डिपेंडेंसी जैसे आपने बताया सर, वैसे ही हो गया ये। ग्रेट। नहीं, फील्ड डिपेंडेंसी जैसा नहीं हुआ। सर वैसे उसमें भी सर उसमें पेरेंट और चाइल्ड किया था कि नहीं सर वो नहीं सेलेक्ट भाई कर नहीं, दिया। वो कंट्रोलिंग और वो था, कंट्रोलिंग और डिपेंडेंट था वो अलग अलग चीजें हैं विशाल, वो नहीं करना, मिक्स एंड मैच नहीं करना, अलग अलग चीजें हैं। एक एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल लाइक मास्टर डिटेल बनाना मतलब सही होगा या नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है ना। चलो अभी नेक्स्ट चीज, एक बात बताओ मेरे को कि आपने फ्लोर वाला ऑब्जेक्ट बनाया है? यस। बनाया है? आपने उसमें भेजा था कल आपने शीट में? यार शीट में तो होगा। नहीं, शीट में नहीं था सर। चलो तो एक इस ऑब्जेक्ट बना शीट में दो, चलो बना दो बना दो। ऑब्जेक्ट मैनेजर पे चलो, फटाक से एक नया ऑब्जेक्ट बना दो, फ्लोर। ठीक है, फ्लोरल लेवल फ्लोर ही रख दो, बहुत बढ़िया। इसको ऑटो नंबर रख दो फटाफट, ऑटो नंबर। एफ डैश डाल दो, एफ डैश, क्लोज कर दो, नीचे स्टार्टिंग नंबर रख दो। ठीक है, इसको इसके रिपोर्ट्स में अलाउ कर दो, एक्टिविटीज कर दो, ट्रैक फील्ड हिस्ट्री कर दो, चार्टर छोड़ दो, नीचे जाओ, डिप्लॉयड कर दो और सेव कर दो, ऐड नोटिस एंड अटैचमेंट्स कर दो एक बारी, अलाउ सर्च और ऐड नोटिस। हाँ ठीक है, सेव कर दो फटाक से। 1 मिनट देना। ठीक है, अभी अभी लेट्स गो बैक टू प्रॉपर्टी। इसमें सर मेरा ये कंफ्यूजन था कि लाइक हमने इसमें दो मास्टर मास्टर डिटेल रिलेशन बना दिया, ठीक है? हम्म, तो वेदर इफ वी डिलीट प्रोजेक्ट दिस रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट, और वेदर वी डिलीट प्रॉपर्टी टाइप देन आल्सो डिलीट, खुद सो इट आंसर इज करो ओके? इसे, खुद खुद आंसर करो इसे, सोचो और खुद आप खुद ओके। आंसर करोगे इसे। सोच लिया तो फिर मैं बताता हूँ। सोच तो लिया बट जब आप क्या प्रॉपर्टी कहते टाइप हैं? डिलीट करोगे, जब आप प्रॉपर्टी टाइप डिलीट करोगे तो प्रॉपर्टी साथ में डिलीट हो जाएगी। अगर यस। आप प्रोजेक्ट डिलीट करते हो तो प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी साथ में डिलीट हो जाएगी। ओके गुड। अगर आप प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी डिलीट करते हो तो प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी चली गई, प्रॉपर्टी टाइप बच गया। प्रॉपर्टी टाइप और प्रॉपर्टी टाइप डिलीट करते हो तो प्रॉपर्टी टाइप और प्रॉपर्टी चली गई, प्रोजेक्ट बच गया। समझ गए? जो भी आप मास्टर डिलीट कर रहे हो ना, उसके चाइल्ड डिलीट हो गए। गॉट इट सर। ठीक है, चलो न्यू पे क्लिक करो फटाफट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ लुकअप रिलेशनशिप। ओके। सेलेक्ट करो लुकअप। ठीक है, सो आई एम क्रिएटिंग हियर अ लुकअप रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टी एंड फ्लोर। ठीक है, सो आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये डिसेबल क्यों आया दोबारा? ये डिसेबल होके इसलिए आया क्योंकि एक लिमिट होती है बिटवीन क्रिएटिंग आपका मास्टर डिटेल और क्या बोलते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मास्टर डिटेल बनाने का एक लिमिट होता है। तो वो लिमिट एक्सीड हो गया होगा। कितने बना दिए हमने? 2 बना दिए, 3 बना दिए, कितने बना दिए? दो 2 बना बनाया। दिए ना, तो वो लिमिट एक्सीड हो गया होगा। चलो अभी लुकअप बनाते हैं एंड देन वील डिस्कस दैट नेक्स्ट। ठीक है, रिलेटेड टू विच ऑब्जेक्ट? दिस फ्लोर। प्रॉपर्टी ना? फ्लोर प्रॉपर्टी पे बना रहे हो ना? हाँ, फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट।
ठीक है, फ्लोर, परफेक्ट, ठीक है। क्लियर द वैल्यूज, जो कि हमारा हुआ था, हमने देखा था। नेक्स्ट करेंगे। एक बारी प्रीवियस चलना, सॉरी। तो अभी आपने देखा था, जब मैंने जैसे ही टावर को डिलीट किया था ना, तो वो वैल्यू क्लियर हो गई थी। तो आप देख रहे हो चाइल्ड रिलेशनशिप के नीचे रिक्वायर्ड के नीचे व्हाट टू डू इफ लुकअप रिकॉर्ड इज डिलीटेड, वो आ रहा है। ठीक है, उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो क्लियर द वैल्यूज, सेकंड ऑप्शन होता है डोंट अलाउ डिलीशन द लुकअप रिकॉर्ड दैट्स पार्ट ऑफ द लुकअप रिलेशनशिप। ठीक है, समझ गए? डोंट अलाउ मतलब कि अगर लुकअप रिलेशनशिप किसी अगर लुकअप रिकॉर्ड जो है किसी लुकअप रिलेशनशिप का पार्ट है, तो वो डिलीट नहीं करने देगा। लुकअप रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद डिलीट कर सकते हैं वहां से। बहुत ही बढ़िया, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, एंड नेक्स्ट अगेन, एंड सेव, एंड सेव। Okay, so this is the way we create a master detail and a lookup. Any questions? Does anyone have any questions here, or we good? No, sir. सारे बढ़िया हैं? ठीक है, तो I leave you today with master detail and lookup. I'm not discussing the junction object as of now. We'll discuss junction object tomorrow. Okay. आज के लिए मेरे को लग रहा है कि काफी है। I think मैं आज सिर्फ आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप लोग सारे मैं आपसे सिर्फ आज ये who is Satoru Gojo? It's me. On WhatsApp, it's me. Who? Robin. यार रॉबिन, कितने नामों से चल रहे हो आप? Sorry, यार. ठीक है, सो तो जंक्शन ऑब्जेक्ट हम आज नहीं बात कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, एवरी सिंगल वन आउट हियर जिसने ये सब कुछ बना लिए हैं, ऑसम, ग्रेट। जिसने भी बना लिया, ये जैसे नीतीश ने बना लिया, अब नीतीश आपका आज एक टास्क है कि आप आज वापस जाओगे और आप जो भी मैंने बताया है उन सब की डेफिनेशंस एक बारी गूगल करोगे, उन सब की डेफिनेशंस एक नोटपैड पे लिखोगे और ट्राई एंड मेमोराइज दैट। ठीक है, कई बारी इंटरव्यूज में, इनिशियल लेवल के जो इंटरव्यूज होते हैं उनमें सिर्फ डेफिनेशन से काम चल जाता है। ठीक है, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। वैसे अभी तक बैठ गया होगा और आप अपने टर्म्स में फॉर्मुलेट भी, मतलब आप अपने टर्म्स में उसे बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी याद कर लेना। जिन्होंने नहीं बनाया है, आपने थोड़ी सी गलती करी है, क्योंकि यू आर लैगिंग बिहाइंड। ठीक है, इतना कोई जरूरी काम नहीं होता कि हम कोई प्रोफेशनल कोर्स सीख रहे हैं। दिस इज अ टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स। हमें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ता है जब हम ऐसा कुछ कर रहे होते हैं, और इतना कोई जरूरी काम नहीं होता कि हम 1 घंटा ना निकल पाए पूरे दिन भर में और ये छोटी मोटी चीजें ना बना पाए। ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट्स बनाना था, सिर्फ फील्ड्स बनानी थी, उसमें भी बहुत कम कम चीजें बनानी थी। ठीक है, तो डू नॉट थिंक दिस इज अ लॉट, दिस इज वेरी लेस, but ensure that you give at least 1 hour of your time to this particular thing. ठीक है, मैं अपने सेशंस में एक प्रोजेक्ट की तरह बना के चलता हूँ। ठीक है, बाय द एंड आप लोग इतने केपेबल हो जाओगे, आप एक पूरा साइकिल रन कर पाओगे सिर्फ 30 क्लासेस में। बट यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर कीपिंग अप विद द पेस, यू कीपिंग अप विद द पेस। ठीक है, ये एक बहुत आज सर कर दूंगा, वैसे पूरा इसको मैं आज कर देखो दूंगा। क्या है ना, ये एक टेक्निकल कोर्स है। ठीक है,
अभी क्या होता है ना टेक्निकल कोर्स में, अब आप लोगों में ना में से बहुत सारे फ्रेशर्स हो गए, बहुत सारे ऐसे हो गए जो 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, 3 साल का एक्सपीरियंस। यार 2-3 साल में ना जो जो चीजें मैं आपको बता दूंगा और पढ़ा दूंगा ना यहाँ पे, 2-3 साल में तो वो चीजें देखने को भी नहीं मिलती, पता है आपको, करने को नहीं मिलती वो चीजें। लेकिन आपको सबको, आप सब कुछ सीख लोगे, आप कोर्स कर रहे हो। जब आप नौकरी कर, अगर आप लेट्स से आपको ऐसी जॉब मिल जाती है डायरेक्टली सेल्सफोर्स में, मैं आपको वो चीजें भी बता दूंगा जो आपको कभी मिलती ही नहीं 2-3 साल में तो करने को। एंड आई विल टीच यू एवरीथिंग। बट द पॉइंट हियर इज दैट इफ यू कीप अप विद द पेस, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। आप एकदम ट्रैक, अब देखो नितिश का क्या है, नितिश आज फ्री है एकदम। नितिश को सिर्फ आज वापस जाना है, अपनी डेफिनेशंस पढ़नी है, बस हो गया उसका काम। उसका मन करेगा तो वो 4 से रिकॉर्ड बना लेगा, बस उसका हो गया। नितिश यहाँ से डेवलपमेंट वाले फेज में आ गया। नितिश का जो काम जो करना था ना वो हो गया नितिश का, ठीक है। नितिश आ गया अब अपने अपनी स्किल्स को डेवलप वाले फेज में, क्योंकि उसने जो जो स्टार्टिंग जो जनरल चीजें थी वो तो वो करके बैठा है ऑलरेडी यार। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरी सिंगल पर्सन, एटलीस्ट बहुत सारा नहीं तो इतना तो करके रखो यार प्लीज। क्योंकि क्या हो जाएगा ना, ये 30 क्लासेस पता भी नहीं चलती हैं ऑनेस्टली। मैं क्लासेस खत्म करके अपने पैसे लेके चला जाऊंगा, मैं आपको वापस मिलूंगा भी नहीं, आप ढूंढते रह जाओगे कहाँ गया बंदा, ठीक है। चलो, सो ऑन दिस नोट वी गो अवे, वील मीट टुमारो। असाइनमेंट आज मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पिछला ही नहीं हुआ है, पिछला करोगे फिर अगला मिलेगा, ठीक है। हेलो। या एक्चुअली कंफ्यूजन क्या हुआ है, आपने जो दिया है तो हमने एक ही ऑब्जेक्ट एक्चुअली मैंने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर वो सब जो टावर है जो भी है उसके फील्ड्स बनाए हैं। आपने कौन सा ऑब्जेक्ट मतलब बनाया है? एक्चुअली प्रॉपर्टी का बनाया है, उसके अंदर जो आपने जो नीचे नीचे दिया है ना प्रॉपर्टी टावर हो जो भी हो, उसके अंदर वो बनाते गए तो वो वो सारे मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं शिल्पा, वो आप दोबारा से ओके, बनाते हो। आपने जो फोटोज दिए हैं ना तो हम्म, वो सब अलग अलग बनाने थे क्या? तो है ना, वो मुझे कंफ्यूजन थे। हाँ ना, हाँ हाँ। हाँ। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, लेट मी सी। Ankit, हम्म yeah, just sorry to interrupt you. हम्म, They are okay. You just explain me so that I can also. ठीक है। तो ये है प्रोजेक्ट, शिल्पा आप Hmm. देख रहे हो, ये प्रोजेक्ट वाला यस। ऑब्जेक्ट है, इसमें ये बनेगा। फिर है आपका टावर। ओके। बेसिकली प्रोजेक्ट वाले ऑब्जेक्ट में तो कोई फील्ड बनी नहीं रही है, ठीक है। सिर्फ एक या लोकेशन वाली वो फील्ड बना देता है, उसमें एक्चुअली हुआ टेक्स्ट। क्या, इसके अंदर में बाकी ट्राई कर रही थी वो बन नहीं पा रहा था, तो वही कंफ्यूजन था कि ये अलग अलग थे या उसके अंदर ही सब डालना था, सब क्योंकि अलग है ना, लास्ट ये वाला देखो जो ना आप। आप, ये देखो ना, हाँ। ये प्रोजेक्ट है, ये टावर है, ओके। ये प्रॉपर्टी टाइप है, ये प्रॉपर्टी है, सारे अलग है। फ्लोर नहीं है अच्छा इसमें, ठीक है, एक फ्लोर भी बना लेना, फ्लोर। ओके, और लास्ट वाला दो दो प्रॉपर्टी दिख रहा है वहां पे क्यों? ना ये क्योंकि जो सारी फील्ड्स प्रॉपर्टी नहीं आ और रही ना ये इसमें, प्रॉपर्टी। बिकॉज ओके, दिस डज नॉट इसीलिए हैव। आपने ऐसा डाला। या तो देखो ना, ये तो बेसिक मैं सेल कन प्राइस प्रॉपर्टी टाइप तक है, और उसके बाद में मुझे ये कंफ्यूजन यहाँ पे ही हुआ, ये जो प्रॉपर्टी दिख रहा है तो मुझे लगा इसके अंदर ये सब एक ही साथ बनाना है नहीं, ये सेम। 3-4 फील्ड्स नहीं आ रही थी ना, रेरा सर्टिफिकेट रिसीव नहीं आ हाँ। रहा था ना नीचे यहाँ पे, ये हो या गया। ठीक है, अब बना लोगे, अब तो आप देखो, अब इजी है, अब बढ़िया है बिल्कुल, आपको रिलेशनशिप भी पता चल गए। अब आप मेरे ख्याल से आप लोग सारे बना सकते हो, मेरे को नहीं या लगता इश्यूज होना या चाहिए, ठीक है। चलो रॉबिन पूछो। Yeah, I had only those few doubts because floor isn't there and property type are they are like both the same. I mean, both the properties are same, right? So नहीं नहीं नहीं, तो देखा करो ना, उसमें सारी फील्ड्स है, कोई नहीं, थोड़ा स्क्रीनशॉट ध्यान से देखिएगा एंड इट विल बी इजियर। ठीक है यार, सो आई एम नॉट गिविंग एनी मोर असाइनमेंट्स टुडे। ये कर लो, फिर हम बात करेंगे। और हमें फिर कल और भी चीज़ों के बारे में बात करनी है, तो वील डिस्कस एवरीथिंग। अभी एटलीस्ट इतना करके रखो दैट सो दैट यू गाइस आर एट पार। बाकी करते हैं, ठीक है। Ankit, just
Hello. Yeah. Yeah, Ankit, like even I did few, but thing is on the field side, uh, your formula currency, that one, everything like, uh, can I share my screen if possible? Yes, you can go ahead. Yeah, just a minute. I didn't. The fields were different of mine, but I have done the projects and everything. Can you just see my screen? Yep. So accounts, contacts, project, towers, and property types, as you told. Hmm. Like, when I click on this one, Godrej towers. So I didn't like I put the other fields. So mostly the fields should be like in especially when it comes to towers. Like, just give me a minute. Hmm. So fields will be like discount will be there, right? Discount. देखो, I'll explain. मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ. आपको? What I do is I basically kind of keep everything as a project. ठीक है? Okay. तो ये एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की तरह मैं इसको लेके चलता हूँ हाँ. हर बैच में. ठीक है? इससे क्या होता है ना, मैं इसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बनवाता चलता हूँ. So this Mhm. order, what this order does and why exactly this order helps is that when you're creating this, the way it is, the way I'm asking you to, later on when we will be doing, when we'll be doing the configurational part, the other configurational part, Okay. तो वहां पे रेफरेंस करना इजी होगा. जब डिस्काउंट है, अब डिस्काउंट से Mhm. रिलेटेड कुछ कुछ चीजें मैं करवाऊंगा आगे. Okay. ठीक है? तो वो इजी होगा. वहां पे ऑलरेडी Mhm. आपकी फील्ड प्रेजेंट होगी, आपको सिर्फ वहां पे फॉर्मूला बनाना होगा या वैलिडेशन बनाना होगा, ये सब कुछ Okay. करना होगा. इसीलिए मैं ये सारी फील्ड्स पहले से ही बनवा के रखता हूँ कि आपके पास में सब कुछ, आप मतलब बेसिकली ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो क्या बोलते हैं, दिस इज लाइक योर बिल्डिंग ब्लॉक्स. योर बिल्डिंग Mhm. ब्लॉक्स आर रेडी. अब Yeah. आपको आगे बस सिंपल उसमें जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो करनी है. हाँ. दैट इज ऑल. Okay. And Ankit, like one more thing is that, see, if I am creating field for towers, okay, you meant like, just sorry to delay this, but if I'm इट्स creating ओके. fields for tower, so this will be around. So fields and relationship में for tower था ना. So mostly if I create for discount, so I'll here I need to go currency पर discount का option नहीं है ना यार, like there's no discount option. So which one I should select the field like that? May I know? Will it be for currency? डिस्काउंट का ऑप्शन क्यों आएगा ये बताओ पहले आप. Yeah, अंडरस्टैंडिंग that's गलत है what. आपकी. उधर ही मेरा थोड़ा doubt था. Yesterday I was like confused there. I had this doubt. अंडरस्टैंडिंग गलत है ना आपकी. आप एक बात बताओ मेरे को सिंपल, Hmm. आप आंसर करोगे इसका. ठीक है? Yeah. आपके पास में डेटा टाइप्स अवेलेबल है. हाँ. जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हो Okay. और वहां पे लिखा होता है फ्लैट दिस मच ऑफ, वो दिस मच हाँ. कैसे होता है? Like percentage. परसेंटेज में होता है. हाँ. Yeah. परसेंटेज के लिए कुछ अवेलेबल है यहाँ पे? हाँ. Percent. तो फिर क्या सिलेक्ट करोगे आप? Percent. Okay. समझ गए? हाँ. Got it. Got it. Got it. करेंसी और क्या ये है? करेंसी क्या है currency मेरे the को? price, like price tag. प्राइस. यस. यस. जैसे हमने प्रॉपर्टी बनाई है, प्रॉपर्टी में हमने बेसिक सेल प्राइस बनाया है, उसको हमने करेंसी रखा है. क्यों? जब हम उसे करेंसी रखेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे रुपी वाला जो वो सिंबल होता है वो बना हुआ आएगा, या डॉलर हाँ. सिंबल डॉलर बना हुआ आएगा, जो भी हम बेसिकली हमारे कॉन्फ़िगर करते हैं हमारे इसमें ऑर्ग में. ठीक है? Okay. उस तरीके से अब हमने ऑर्ग में क्योंकि आईएनआर कॉन्फ़िगर कर रखा है तो आईएनआर से आएगा. आपने क्या करा ये नहीं पता. अभी आपने क्या करा है कॉन्फ़िगर? नहीं नहीं, I did INR. Calcutta. I आईएनआर. did. Yes, yes, yes. बहुत I had done बढ़िया. the INR. ठीक है तो फिर Yeah. Okay. Okay. I'll be doing this as soon as like class ends, and I'll show you tomorrow. Cool. ठीक है. Okay. Yeah. ऑल राइट देन. सो एनीवन एल्स? कोई क्वेश्चन? साई कोई कुछ पूछना है? विशाल कुछ पूछना है? हाँ सर, आज मैं करूंगा इसको, अगर कोई प्रॉब्लम होगी देन मैं कल सही.
ठीक है नितिश, Yes, no question, sir. बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फिर इसमें कल बस दो मिलते हैं। फील्ड को भी, अपने दो फील्ड को इग्नोर करने के लिए कहा था, वो भी क्रिएट नहीं किया मैंने ना। बनाएंगे ना वो अपन, वो कल सीखेंगे, पहले फिर बनाएंगे ना। ओके ओके कल हम वो सीखेंगे, ठीक है। ओके सर। And Ankit, floor में like same field should be there. Floor fields. हाँ, जो आप सिंपल है, आप स्क्रीनशॉट को रेफर करो, जो आपको दिख रहा है बस वो बनाओ बिंदास, ठीक है। Screenshot में floors नहीं है यार. That's the reason. अरे अच्छा, फ्लोर में कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे फ्लोर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना अभी, बस वैसा बना देना, दैट्स ऑल, ठीक है। Okay, fine. Yeah. Cool. ठीक है, ओके देन, सो थैंक यू सो मच।